Hello, hello. Today we'll do an introductory class for the Power System 2 lab. So I'm sharing you the syllabus for all of you. All of you look at the syllabus of the Power System 2 lab that we are going to conduct from today onwards. Uh, these are the labs that we have in our syllabus, in our JUT syllabus, obviously. These are the list of experiments. See, uh, based on the pattern of the syllabus given by JUT for this semester for Power System 2, we have two groups of uh, lab classes. There are two groups of experiments that we are going to conduct in our Power System 2 lab classes. Group A, obviously, Group A has a simulation based experiments. That is, simulation means which we can conduct through softwares, mainly MATLAB, and there are many other softwares, but we will be mostly using MATLAB. Group A has these experiments 1 to 10 experiments, and these are the experiments. Just go through them for a while. Okay, formation of bus admittance matrix, solution of load flow problem using Gauss-Seidel, load flow problem using Newton-Raphson, load flow problem using fast decoupled method, formation of Z-bus matrix, application of swing equation and its solution to determine transient stability, simulation of LFC for two-area power system, economic load dispatch without considering network losses, economic load dispatch considering network losses, and to perform symmetrical fault analysis in a power system. These are the simulation-based experiments that we will be doing via MATLAB or any other software as and when required. And Group B, the second type of list of experiments that we have in our syllabus is Group B. These are mostly hardware-based. We have 4 experiments here, as you can see. Here it is, as you can see. The 4 experiments are first is to determine the negative and zero sequence synchronous reactance of an alternator, to determine fault current. I think the screen is visible. I'm sharing it again. Yes, to determine the negative and zero sequence synchronous reactance of an alternator, to determine fault current for LG, line to ground, line to line, LLG and LLL faults at terminals of an alternator at very low excitation, to determine location of fault in a cable using cable fault locator, and to determination of power angle characteristics of an alternator. So if you look at the pattern of distribution of experiments in this list, you will find out that Group A has more experiments, than Group B. That is, the experiments are mostly we're going to do are simulation based. More focus has been given on simulation based or software based experiments than hardware based experiments. Here the number is 10 and this number is 4. This is the number of syllabus, number of experiments that we have we're supposed to conduct, and maybe we'll do a few extra out of the which are obviously not written in the list as and when required. Now, the mode in which we are going to conduct these labs. We are going to conduct these labs in 3 ways as of now. I think you are familiar with the virtual labs of IIT Bombay. Students have already performed experiments in their previous semester. तुम लोग शायद किए हो लास्ट सेमेस्टर में अपना मशीन लैब में या सर्किट लैब में या कहीं भी. हमारा कॉलेज वी आर एक्चुअली नोडल ब्रांच ऑफ IIT Bombay in their virtual labs, so we can do experiments from their virtual lab. तो 2 या 3 उपाय हम लोग का जो है वर्चुअल, एक तो हो गया वर्चुअल लैब IIT बॉम्बे का, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास है दैट वी कैन कंडक्ट रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ पावर सिस्टम 2. एक नंबर पहला हो गया. दूसरा ऑब्वियसली थ्रू मैटलैब सिमुलेशन, जो हम लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे. ऑनलाइन मोड में मैटलैब सिमुलेशन जैसे तुम लोग को लिस्ट मिल ही गया है, ये सब ये हम लोग करेंगे. दूसरा
दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय जो हमारे पास है, जो नॉर्मली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मतलब नॉर्मली हम लोग लैब में जैसे वी आर हैबिचुएटेड, जस्ट लाइक वी आर हैबिचुएटेड इन लैब्स, दैट इज हार्डवेयर बेस्ड। अभी तो मान लो लॉकडाउन है, सो वी आर एट होम, hardwares are not accessible to us as of now, but once the college opens in the future, we will also show you the hardware based experiments that we have in the labs. Hey, these are the three ways we can do labs further. ये पावर, हाँ मैं जो आई शुड हैव मेंशन बिफोर, मैं बोलना भूल गया पहले, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये लैब हम लोग करेंगे, मैं और पंकज सरकार सर, दोनों मिल के करेंगे। ये लैब तुमको पावर सिस्टम लैब करवाएंगे, पावर सिस्टम 2 लैब तुमको करवाएंगे हम दोनों मिलके। तो पंकज सर हैज सम रिकमेंडेशंस from his side. He has recommended a few more procedures by which we can conduct the labs, since we are doing this in online mode। ऑनलाइन में कर रहे हैं तो ऑनलाइन जितना उपाय हो सके। तो पंकज सर जो जो बोले हैं उनका एक रिकमेंडेशन ये है कि हम पंकज सर कुछ प्रैक्टिकल लैब्स का वीडियोस कलेक्ट करेंगे, जो प्रैक्टिकली तुमको शो करेंगे कि लैब का लैब एनवायरनमेंट में लैब कैसे, जो कंडक्ट कैसे हो रहा है। जो सर तुमको उस टॉपिक के बारे में थ्योरी बता देंगे, he will tell you about the theory part, and he will show the video of the given experiment, how the experiment is supposed to be conducted. Since you are at home, you can have the real life experience by looking at the video, the output, the input, and how the machine is working, or how the experiment is working out. And then after watching the video, me or Pankaj sir will explain you the video what happened inside the in the practical, in the lab function that we are conducting. So he will be collecting, it is his recommendation that he will collect various practical lab videos from various sources, पहला। और उनके एक और रिकमेंडेशन था कि since we are doing experiments, doing this lab via ऑनलाइन मोड, तो हम तो ये जरूर कर सकते हैं कि वी कैन इनवाइट रिसोर्स पर्सन related to the field of power system। resource person मतलब who has real life experience, practical experience of conducting these practicals actually in real life मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया। रियल लाइफ ये ना होता है, रियल लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो सिर्फ लैब में करें। रियल लाइफ मीन्स एप्लीकेशन ऑफ whatever experiments we are doing in lab, those the application of those in our practical, in our industry और डेली लाइफ। तो ऐसे लोगों को पंकज सर इज ट्राइंग टू कांटेक्ट एंड इनवाइट एज रिसोर्स पर्सन। ऑब्वियसली अभी कोविड का टाइम है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनको जाके बोलेंगे और वो लोग आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हम लोग के पास एक सुविधा है, जो सुविधा हम लोग के पास जो सुविधा है वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन उनको रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, ऑनलाइन वो एक लेक्चर तुमको दिखा सकते हैं, ताकि क्या हो सके, तुम लोग को जैसे इंडस्ट्री में विजिट करते हो, जब तुम लोग यू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू सी द इंडस्ट्री हाउ इज इट वर्किंग, इफ those people can give you their industry experience and what are the practical applications of this, let's say this given list of experiments। क्या कोई practical experiments, practical कैसे होता है, प्रैक्टिकल एक्चुअल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे होता है, दे कैन गिव यू द आइडिया and way more knowledge about the industry field than you can have the experience in labs, right? तो एटलीस्ट तुमको इस कोविड सिचुएशन में घर में बैठ के भी इंडस्ट्री का एक आइडिया हो जाएगा। अब एटलीस्ट 1/3 एक्सपीरियंस तो कर ही सकोगे, जितना तुम जाके देखोगे एटलीस्ट वी कैन अरेंज फॉर 1/3 ऑफ द एक्सपीरियंस, है ना। तो ताकि तुम लोग को एक इंडस्ट्री विजिट का भी आइडिया हो जाए और रिसोर्स पर्सन से तुमको प्रैक्टिकल आइडिया भी हो जाए। तो पंकज सर इज एक्चुअली ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट एंड मेकिंग कॉन्टेक्ट्स एक्चुअली विद देम, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का मोड्स ऑफ कंडक्टिंग। आज उतना तुम लोग का लैब नहीं हो, आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। इंट्रोडक्टरी मतलब तुमको क्या है, कैसे करवाएंगे,
फर्दर सिलेबस में तुम्हारा क्या क्या है, कैसे यू कैन, हाउ यू कैन अप्रोच दिस थिंग्स, है ना, ये सब बताया जाएगा। फिर फर्दर धीरे धीरे एज एंड व्हेन, इससे इसके अलावा जैसे बोला गया है, ये मोड के अलावा ये सिलेबस के अलावा भी मान लो अगर हम लोग को और टाइम बचा, और इफ वी हैव टाइम लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेरिमेंट्स और अदर related power system related topics, we can discuss that, we can revise those things, है ना। जरूरी नहीं है कि इतना ही देखे जितना लिखा हुआ है, जितना मिलेगा हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, जितना जानेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये तो मोरलेस दीज आर दी practicals that you have in your lab syllabus. Now we shall go to the we shall now we shall go to the theory part. थ्योरी पार्ट में हम जाके देखेंगे थ्योरी पार्ट में हम लोगों का क्या क्या है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी तुम लोगों का है इस बार। पावर सिस्टम 2 का हाँ, दिस इज द थ्योरी सिलेबस ऑफ पावर सिस्टम 2, डिटेल्ड सिलेबस। अगर तुम ठीक से देखोगे तो द थ्योरी पार्ट इज डिवाइडेड इन, अगर तुम ठीक से देखोगे तो थ्योरी पार्ट इज डिवाइडेड इन 6 मॉड्यूल्स। वी हैव मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके हमारे पास 6 मॉड्यूल है, ठीक है। हो सकता है मोर और लेस यू हैव read about these modules in your previous पावर सिस्टम क्लासेस। एक साल पहले शायद तुम लोग का पावर सिस्टम था, अभी तो 6 सेम में है। तुम लोग का पावर सिस्टम 1 था 4th सेम, सॉरी, हाँ 4th सेम में, 4th सेम में करेक्ट, 4th सेम में पावर सिस्टम 1 था। तो वहाँ पे भी थोड़ा तुमको कॉमन मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग जब चेक करेंगे, मॉड्यूल 1 है में हमारा है पर यूनिट सिस्टम जो है। मॉड्यूल 2 में है फॉल्ट एनालिसिस, जो तुमको दिखा होगा प्रैक्टिकल्स में, तुमको दिखा होगा एल जी फॉल्ट्स, ये सब फॉल्ट्स लिखा हुआ था, ठीक है। फिर नेगेटिव जीरो सीक्वेंस नेटवर्क्स, ये सब था तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में, फॉल्ट एनालिसिस है मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में लोड फ्लो एनालिसिस है। मॉड्यूल 4 में इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम्स है, ठीक है। मॉड्यूल 5 है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लोड फ्लो एनालिसिस हो गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन, दीज आर वेरी, हेलो, आई थिंक, अच्छा नेट थोड़ा स्लो हो गया था, कट गया था। मैं फिर से शेयर करता हूँ, देखो। यस, आई थिंक द स्क्रीन हैज कम। ओके, मॉड्यूल 5 तक शायद बोला था, मॉड्यूल 4 तक बोला था, मॉड्यूल 4 तक बोला था इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। दे आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये सब तुम्हारा, ये देखो स्विंग इक्वेशन, इक्वलिटी एरिया क्राइटेरियन, ये सब तुम्हारा प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन योर थ्योरी क्लास, सो दैट you can understand what is happening in the practical classes and vice versa। अभी तुम लोग को शायद पंकज सर जब पढ़ा रहे थे, तो वो शायद क्लास करके ये यूट्यूब में अपलोड भी कर रहे थे, तो इसके बारे में शायद तुम लोगों को पंकज सर के यूट्यूब का चैनल से भी मिल जाएगा, मोरलेस लेक्चर से मिल जाएगा, जहाँ से तुम रिवाइज कर पाओगे एक और बार, अगर कोई भी टॉपिक हुआ है तुम्हारा पहले इसमें से, यू शुड बी एबल टू रिवाइज दिस थिंग्स, ठीक है, ताकि एक बार ब्रशअप हो जाए। ब्रशअप हो जाने से क्या होगा, तुम लोग को आगे का जो जो टॉपिक हो जाएगा होगा, तुम लोग का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी syllabus, a very important thing is based on this theory syllabus that have been given to you, these 6 modules, that is per unit system, sorry, per unit system, fault analysis, load flow analysis, economic operation of power systems, load frequency control, stability, based on these 6 topics, वो
जैसे तुम लोग का भी शायद पावर सिस्टम तो थ्योरी क्लास है इनका, क्या कहते हैं, स्वतः मैडम, तो वो भी शायद अपना कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे। फिर भी अगर तुम लोग को कोई बुक रिकमेंड करना हो तो थ्योरी सिलेबस से तुमको कुछ बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स है, नागराथ कोठारी है, फिर CL वाधवा है, ठीक है। फिर यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कुछ, हाँ, DP कोठारी, अजय नागराथ, दिस इज अ गुड बुक। ये वेनर एंड स्टीवेंसन भी अच्छा किताब है, ये सब कर सकते हो। CL वाधवा एक है, CL वाधवा भी अच्छा किताब है, जहाँ पे तुम लोग का मोरलेस, मोरलेस नहीं पूरा ही, मोरलेस तो गलत बात हो गई है, जो भी है तुम लोग का पावर सिस्टम में ये तुम लोग का कवर हो जाएगा। एंड यू विल बी ऑन, आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर तुम लोग का थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होगे, रिवीजन किए होगे पहले का, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली ऑल द टॉपिक्स। बाकी तो क्लास तो होगा ही, मैडम अपना शायद रिकमेंडेशन भी देंगे, सजेस्ट करेंगे कुछ बुक्स अपना भी। और एक किताब है तुम लोग फॉलो कर सकते हो, है सोनी गुप्ता भटनागर। ये सब पंकज सर रिको इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय पंकज सर, सोनी गुप्ता भटनागर, ठीक है। गिवन दिस थिंग्स यू कैन गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स दैट वी हैव, ठीक है। अब बाकी ये हो गया मोर और लेस अपना इंट्रोडक्टरी क्लास का जो क्या कहते हैं टॉपिक्स जो डिस्कस करने का था अपना, ठीक है। अब आगे इसके अलावा आई हैव सर्टेन थिंग्स टू इंस्ट्रक्ट यू, सिंस आई एम गोइंग टू टेक योर लैब क्लासेस, you are supposed to know certain things about this class। पहले मैं सिलेबस निकल देता हूँ तुम लोगों का, आया है। हाँ, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गया है, एक बार देखना तो देख लो। बाकी तुम लोग को मैं, अच्छा हाँ, जो इंस्ट्रक्शंस मुझको देना था स्टूडेंट्स को, एंड ध्यान से सुनो, यू आर सपोज टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, आई नीड यू टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, सो लिसन टू दिस थिंग्स वेरी अटेंटिवली। पहला, मैंने देखा है कि लैब क्लासेस में तुम लोग का अटेंडेंस बहुत कम रहता है। आई नीड यू टू अटेंड ऑल द लैब क्लासेस, क्योंकि अगर टॉपिक अगर छूटेगा बीच में, then I don't think you'll be able to understand the topics discussed in the following classes। इसीलिए लैब क्लास मिस मत करो, प्लस जो थियोरी में पढ़ रहे हो वो तुमको लैब में जब दिखेगा तो मिस करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जाहिर सी बात है, मैंने देखा है बहुत, क्योंकि तुम लोग का मैं पहले भी क्लास ले चुका हूँ, कंट्रोल में ले चुका हूँ लास्ट सेमेस्टर में, तब शायद तुम लोग को मतलब मैंने दिखाया था थोड़ा बहुत, जितना भी देखा है तो उसका फर्दर भी तुम लोग को दिखेगा। हाँ, मैं जो बोल रहा था एक्चुअली में, उसमें भी देखा है तुम लोग का अटेंडेंस बहुत कम रहता है। लैब क्लास में मुझको अटेंडेंस चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैब है इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आई नीड यू टू अटेंड द लैब क्लासेस, मुझको अटेंडेंस चाहिए, मुझको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 35 स्टूडेंट है, मतलब 15 स्टूडेंट घर में सोए रहे, 18-19 स्टूडेंट आए, आई डोंट नीड दैट। दिस इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर थ्योरी क्लासेस। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ ली लैब में उसको नहीं चाहिए, नंबर मिल जाएगा, नहीं। आई नीड यू टू अटेंड द लैब क्लासेस, दिस इज, आई want to make you I want to make this thing very clear in front of you, पहला। दूसरा, गूगल क्लासरूम का कोड मैंने तुम लोग को ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन सून, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि दिन का दिन आओगे और तुम लोग को शेयर कर दिया जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब वर्चुअली लैब करवा दिया जाएगा, ऑनलाइन तुम लोग देख लोगे, खत्म। क्लास ज्वाइन नहीं किए, गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए, कुछ नहीं होगा। ज्वाइन कर लो, इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग टाइम टू टाइम, जैसे पंकज सर बोले, थ्योरी शेयर करेंगे, या जो भी हम लोग लैब में करवाते हैं वो शेयर करेंगे, रिलेटेड डेटा शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जिससे तुम लोग को क्लास के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। सो ज्वाइन योर गूगल क्लासरूम एज सुन एज यू कैन, ऑल ऑफ यू। नहीं हो रहा है, बहुत दिन से तुम ऑनलाइन ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का तुम लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है। बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हो, यू डू हैव ऑल द आइडिया ऑफ ऑनलाइन क्लास, इसलिए ज्वाइन कर लो, नखराबाजी मत करो। दूसरा, तीसरा,
अभी कोविड का सिचुएशन है, तो आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक रहो, सही रहो, जो रूल्स रेगुलेशन बोला गया है ध्यान रखो, बाहर मत निकलो। ठीक है? कुछ होगा, तबीयत खराब होगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। 2 दिन घर रहोगे कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है? घर रहोगे, अच्छा ठीक रहोगे। घर में रहो, सेहत का ख्याल रखो अपना। ठीक है? और जब क्लास होगा, क्लास होते होते मैं किसी न किसी को बोलूंगा, या तो सीआर को बोलूंगा मुझको अटेंडेंस भेजने, स्क्रीनशॉट करके मुझको अटेंडेंस तुम लोग भेज देना। ठीक है? ये 3-4 चीज मैंने बोला, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से फॉलो रखना है। एक तो अटेंडेंस मुझको चाहिए। अटेंडेंस चाहिए मतलब आई नीड यू टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में रहना, सब। मुझको दिखना चाहिए कि सब स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है? ऐसा मत बोलना। और ये कुछ गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। वहाँ तुमको सब थ्योरी हो, शेयरिंग जो भी है, सर कुछ देंगे, मैं कुछ मटेरियल दूंगा, तुमको मिलेगा। और अपना ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज हम लोग इस बार से कर रहे हैं, सभी फैकल्टीज, पंकज सर जो पहले से ही कर रहे थे, लास्ट जब से ऑनलाइन चल रहा है तब से ही कर रहे थे, तो तुम लोग देख रहे थे, जो हम सर जो लेक्चर बना रहे थे वो अब यूट्यूब में अपलोड कर रहे थे। तो अब से वो हम लोग सभी करेंगे। हम लोग का जो लैब क्लास होगा उसका भी जो वीडियो बनेगा मैं भी यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो वो फर्दर तुमको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, मान लो तुमको फिर से एक बार रिवीजन करना है उस टॉपिक के बारे में, फिर से तुमको एक बार देखना है क्या है टॉपिक में, क्या डिस्कस किया गया था, कुछ क्वेश्चन आया है, फिर से क्या था उससे, अगर फर्दर तुमको आगे का क्लास के कुछ पूछना है, कहीं अटक गए थे, कहीं तुम्हारा मिस हो गया था, ऐसा हो सकता है, तो देन यू कैन चेक द वीडियोस। ठीक है? यू कैन चेक द वीडियो एंड रिवाइज देम, सॉर्ट योर क्वेश्चंस आउट। कुछ क्वेश्चन मिले तो लिख के रखना। ठीक है? नेक्स्ट दिन क्लास में तुम पूछ पाओगे उस टॉपिक के बारे में। ठीक है? और तुम्हारे पास एक जैसे स्टडी मटेरियल की तरह रहेगा, उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? ताकि सब लोग यूट्यूब में एक्सेस कर सके। इस बार से सभी फैकल्टीज यही कर रहे हैं। ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। इंट्रोडक्शन में हम लोग का सिलेबस हम लोग को दिखा दिए, सिलेबस शेयर भी कर देंगे गूगल क्लासरूम में, सबको दे देंगे, ताकि अगर तुम लोग के पास नहीं है तो तुम लोग आगे का पढ़ाई कर सकोगे सिलेबस देख के। है ना? तुम लोग का दूसरा भी सब्जेक्ट्स है, मोड्स ऑफ कंडक्टिंग कैसे लैब करवाएंगे तुमको दिखा दिए हैं। थ्योरी का मोरलेस बोल दिया है। अब देखो क्या है, बुक्स तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है, हम लोग को हम सर ने भी कुछ रिकमेंड किया है। ठीक है? तो अभी इट्स दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है? तो मैं अभी बंद करता हूँ क्लास। इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड से आगे आगे कैसा कैसा क्या क्या होगा, इंस्ट्रक्शन तुम लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है? क्लास से पहले ही। तो you can conduct we can conduct our class like that, instructions you will be getting instructions accordingly। ठीक है? ओके, तो अभी मैं बंद करता हूँ फिर। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। ओके।